Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 9 of our chemical bonding series. Today we are going to talk about learning objective of hybridization. In hybridization, this is the part of chemical bonding and molecular structure. In hybridization, first of all, draw the orbital overlap diagram. Then predict the shape of hybridization and evaluate between VSEPR theory and hybridization. सो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है. विदाउट नोइंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, it is very difficult to explain the angle, explain the geometry, explain the shape, explain the orientation of orbitals in space. So सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे इन एग्जामिनेशन. हाउ टू डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन. कंसेप्ट ऑफ intermixing of different orbitals, atoms, and then redistribution of energy to give new orbitals of equivalent energy, identical shape, and symmetrical orientation in space. The new orbitals formed as a result of hybridization are known as hybrid orbitals, and bond formed by such orbitals are called hybrid of bonds. Then इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझना कि हाइब्रिडाइजेशन किस कंडीशंस में होगा. तो सबसे पहले हमको यह पता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट के बारे में आप समझिए. Number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbitals undergoing hybridization. In one line, number of hybrid orbital is equals to number of atomic orbitals. Then point number 2, hybrid orbitals are equivalent in energy and shape. Then hybrid orbitals form a stable bond with pure atomic orbitals. Hybridization involves atomic orbitals of central atom. इस सबसे important point है कि central atom ही involve होगा hybridization में. And hybrid orbitals have different orientation in space. For example, in sp hybridization, two hybrid orbitals at 180 degree. In sp2, three hybrid orbitals at 120 degree. In sp3 hybridization, four hybridized orbitals at 109 degree 28 minutes. That is the angle of tetrahedral. Then how to calculate the angle? Mathematically, angle of hybrid orbitals cos alpha equals to 1 by m. M is the number of p orbitals involved in hybridization. For sp hybridization, cos alpha equals to -1 and value is 180 degree. sp2 cos alpha 1 by 2, angle is 120 degree. sp3 cos alpha is 1 by 3, angle is 109 degree 28 minute. Then next characteristic के बारे में समझिए, that is very very important. और कहा जाए तो ये हम सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा. दोज ऑर्बिटल्स दैट हैव गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन undergo hybridization, but if needed, orbital contains lone pair that can also participate in hybridization.
So energy of hybrid orbital is always less than energy of unhybridized orbital. इसके बाद आप देखेंगे हम इसको एक एक करके वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। इस कंसेप्ट को कैसे हम समझेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको बताना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर वन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आप ध्यान से समझेंगे, एसपी का मतलब हुआ कि हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक हमारा पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो हम एसपी में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनकी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लीटर वाइट कलर है और 1 लीटर ब्लैक कलर है, एस और पी के टर्म्स में, दोनों को मिक्स करने के बाद आपने इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमने यहाँ बनाया एक बिग लोब और एक स्मॉल लोब। बिग लोब को हमने पॉजिटिव साइन लिया और स्मॉल लोब को नेगेटिव साइन लिया। पॉजिटिव साइन का मतलब कि यह जो पार्ट है यह ओवरलैपिंग में ओवरलैप होगा, यानी कि हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड अलोंग विथ बॉन्ड एंगल। मतलब कि दोनों एस जो हमारे एस और पी के मिलने के बाद, मिक्स करने के बाद जो हमने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गए हाइब्रिड। अभी दोनों जब इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, 1s एंड 1p, सो इनका कंडीशन आप देखेंगे, इजीली आप समझ जाएंगे। आप एक डॉटेड लाइन ले लो या सिंगल लाइन ले लिया हमने, इसके ऊपर हमने इसको मिक्स कर दिया ऐसे। अब ये हमारा जो ऑर्बिटल बना, इसको हम कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यह हो गया हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसमें आप देखिए आपका एंगल जो है, यह भी आप बता सकते हैं, यह एंगल हमारा जो होगा दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, यह होगा मैथमेटिकली 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल बन गया हमारा। अब इस एंगल में आप देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री हमने आपको बता दी, इजीली आप खुद देख के बता सकते हैं कि यह हो गया लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल आप बता सकते हो इसके। सबसे पहले आप देखिए इसमें BeX2, यहाँ पर x को हमने बताया कि x इक्वल्स टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका C2H4 इथीन मॉलिक्यूल, HgCl2, दीज आर द एग्जाम्पल। अब इसके बाद आप आइए सेकेंड पॉइंट में, sp। यहां और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। sp का मतलब हुआ कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, हमने एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल बना लिया और हमने 2 p ऑर्बिटल ले लिया, एनी 2 p ऑर्बिटल्स। यहां पर हमने 2 p ऑर्बिटल ले लिया। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 1s और 2p। हमने इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। अब 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। बड़े लोब्स में हमने प्लस लिखा और छोटे लोब में माइनस लिखा। प्लस जो है हमारा वह कंस्ट्रक्टिव है और माइनस जो है वह डिस्ट्रक्टिव है, उसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जब 3 ऑर्बिटल्स आ गए, एक s और 2 p ऑर्बिटल, सो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
अब sp2 में इसको बनाने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप डॉटेड लाइन से ऐसे करिए, डॉटेड लाइन आप बना लीजिए और डॉटेड लाइन के ऊपर आप लोब्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखने से आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, और आप क्लास में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी में कंसेप्ट क्लियर करना होगा आपको, कैसे हम एग्ज़ाम में बिना गलती के अच्छा से ड्रॉ कर सकें। और स्मॉल लोब्स हमने इधर दिखा दिया जो मर्जर के बाद दिख रहे हैं आपको, और एंगल आप अब इजीली बता सकते हैं, देख के एंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज़ 120 डिग्री, और इसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यह हो गया sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें बॉन्ड एंगल 120 हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं आसानी से, BeH2, BH2 बोरॉन, BH3, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, C2H4, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस। यहाँ हमने जो एग्जाम्पल बताया था आपको उसमें थोड़ा सा आपको सुधार करना है। दिस इज बेसिकली इथाइन C2H2, इथाइन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। सो अब इसके बाद हम फिर आपको थर्ड पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे। अब आपका कंसेप्ट sp2 और sp3 में और आसानी से कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब sp3 में फिर हमने ले लिया एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल और 3p ऑर्बिटल्स, px py pz, कुछ भी आप px py एंड pz, 3p ऑर्बिटल्स आपने ले लिया इजीली। अब हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। अब ऑल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फर्स्टली मिक्स टुगेदर, बताया हमने डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब 4 से हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 लोब बना लिया, स्मॉलर को माइनस बिगर को प्लस। जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम होंगे, हमने आपको कंडीशंस में बताया है। अब इस 4 के मिलने से हमारा जो ज्योमेट्री होगा वह हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा कंसेप्ट। आप डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए छोटा सा ऐसे। आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद बीच से आपको नीचे एक लाइन को लाना है। 2 स्मॉल ट्रायंगल और बन जाएंगे नीचे ऐसे, और इसके बाद इसमें एक पॉइंट आप ले लीजिए बीच में कहीं भी, और यहाँ से आप 4 लोब ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। देखिए, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, थर्ड लोब एंड फोर्थ लोब। ये पॉजिटिव लोब हो गए, और 3 लोब्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, चौथा नीचे है प्लेन के, वो नहीं दिखाई देगा। अब इसमें आपका जो एंगल होगा ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बन गया। यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एग्जाम्पल हो गया मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड SnCl4, अमोनियम
BH4 प्लस, BH4 माइनस, ये सारे टेट्राहेड्रल हैं, आइसोलोबल्स हैं। सो sp3 में हमने देखा कि 1s ऑर्बिटल और हमारे 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, एंगल हमको पता लग गया। अब आया हमारा नंबर नेक्स्ट, sp3d, sp3d। अब इसमें सेम कंडीशंस में हम चलेंगे। पहले हमने ड्रॉ कर लिया एक s ऑर्बिटल, उसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया p ऑर्बिटल। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। p ऑर्बिटल 3 लेना है हमको, px, py और pz। अब एक क्वेश्चन होगा कि d ऑर्बिटल, कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा यहाँ? तो यह एक कंसेप्ट जो है हायर क्लासेस में और क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको हम बताएंगे कि देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहाँ पर dz स्क्वायर यूज होगा। इसको हम लोग हायर क्लासेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी आप इसको लर्न करके रखिए क्लास 11th के लिए। dz स्क्वायर, हम एक ऑर्बिटल यहाँ ले लेंगे। dz स्क्वायर में केवल 2 ही लोब होते हैं और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग होता है। अभी dz स्क्वायर ऑर्बिटल को हमने क्या किया कि 1s, 3p और 1d, टोटल हमारे पास हो गए 5। इनको सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑल 5d ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर एंड देन रिडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। इक्वल एनर्जी होगा सबका, सेम लोब्स बनाइए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबको आप ध्यान से देखेंगे, सब सिमिलर हैं, और इनके मिक्सिंग के बाद हमारे पास 5 ऑर्बिटल से हमारी ज्योमेट्री जो होगी वह बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ड्रॉ करने का रियल इजीली एक हम टेक्निक बता रहे हैं आपको। आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके बीच से एक लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिए और 2 लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप लोब को ओवरलैप कर लीजिए आसानी से। 1, 2, 3, 4 और 5 लोब। इसको आप मिक्स कर दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए 3 लोब को बहुत आसानी से। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री है, इसमें 2 तरह के एंगल होंगे, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। तो इसमें आप इजीली यहां समझ सकते हैं कि यह जो हमारा है अबव द प्लेन, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया एक्सियल, और इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर ए जो है यह बेसिकली एक्सियल है जिसका एंगल 90 डिग्री होगा, और ई जो हमारा है यह इक्वेटोरियल है। और इसका एंगल होता है 120 डिग्री। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक ही क्वेश्चन होगा कि विच d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बताएंगे dz स्क्वायर। और कितने इसमें ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? टोटल ऑर्बिटल 5 हैं, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल। और इसके एग्जाम्पल्स को भी आप समझ सकते हैं इजीली। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज pf5, pcl5, asf5। these are the examples of sp3d hybridization। अब इसमें एक और है जो अभी केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका sp3d, और एक होता है dsp2।
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। अब इसमें 1d ऑर्बिटल जो dx² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1s प्लस 2p ऑर्बिटल्स होंगे। इसको आपको कंसेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। अब हमने इसमें आपको बताया एक d ऑर्बिटल dx² माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि लोब्स x और y एक्सिस पर ओवरलैप होते हैं। आप पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, dx² माइनस वाई स्क्वायर, 1s ऑर्बिटल एंड एनी 2p ऑर्बिटल। तो हमने 2p ऑर्बिटल ले लिया, तो टोटल ऑर्बिटल्स हमने मिक्स किया 4, टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल। और आफ्टर मिक्सिंग हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया एनर्जी सेम मेथड से, स्मॉल लोब बिग लोब, पॉजिटिव और नेगेटिव से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल हमने इसमें 5 लोब्स बना दिए, माइनस प्लस 1sd, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। सो टोटल हमारे पास होगा इसमें 4 लोब्स। और इसका जो ज्योमेट्री होगा, मिक्सिंग ऑफ dx² माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको डॉटेड लाइन से आपको बताया ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करना है। आप एक स्क्वायर बना लेंगे और 4 के मिलने से टेट्राहेड्रल भी बनता है, लेकिन यह इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल जो है उस सेंटर से हमने ऐसे बनाया इसको, फिर यहाँ से ऐसे एक लोब बनाया, एक लोब यहाँ बना और एक लोब यहाँ बना, 4 लोब्स यहाँ इंक्रीज हुए और सबका जो स्मॉलर पार्ट है यहाँ दिख रहा है। इसका हो गया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। 4 लोब्स इन्वॉल्व होने के बाद इसकी ज्योमेट्री का नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। और इसका जो एंगल है वह होता है 90 डिग्री, सारे एंगल सिमेट्रिकल हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का NiCN4 2-। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको हम कहते हैं टेट्रासाइनोनिक्लेट 2। तो हम लोग डिटेल में हायर क्लासेस में क्लास 12 में पढ़ेंगे और जेई के सिलेबस में क्लास 12 भी आ जाएगा। PtCl4 2+2-। सो ये हो गया हमारा DsP2। नेक्स्ट हमारा है sp3d2। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारा आएगा sp3d2। अब इसमें हम इजीली बता सकते हैं, अब हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर हो चुका है कि हमने देख के हम बोल सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल है इसमें और हमारे 3 p ऑर्बिटल हैं, px, py और pz हमने ड्रॉ कर लिया इजीली। 3 हमारे हो गए p ऑर्बिटल्स और 2 हमारे d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे इसमें। फर्स्ट d ऑर्बिटल जो हमारा होगा वह होगा dx² माइनस वाई स्क्वायर, dx² माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा हमारा dz², जिसके पास 2 लोब होते हैं और एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग होता है। और dx² माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा जो है इसके पास 4 लोब होते हैं। तो टोटल हमारा 1s 3p एंड 2d, सो 1 + 3 5 एंड 2 7, 1s 3p एंड 2d, टोटल हमारे ऑर्बिटल्स हो गए 7। अब इसमें आफ्टर मिक्सिंग अब रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, सेम कंडीशन है। अब इसके बाद कभी भी लाइफ में आप इसको नहीं भूल पाओगे
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे हम इसको ईज़िली बना लेंगे ये आप देख सकते हैं। अलग अलग हमने प्लस करके दिखा दिया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एक हाइब्रिड बना हमारा s का px, py, pz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो टोटल हमारा सिमिलर टाइप के 1 2 3 4 5 6 बन गए। एक s ऑर्बिटल 3 4 हो गया और 2 d ऑर्बिटल के चलते। अब इनके मिक्सिंग से फिर सेम आप स्क्वायर प्लेनर टाइप ज्योमेट्री पहले ड्रॉ कर लीजिए। आप डॉटेड लाइन से बना सकते हैं इजीली, या फ्री हैंड से ऐसे भी बना सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपने ड्रॉ किया और इसके 4 कॉर्नर पर 4 लोब आपने बना दिया। इसके सेंटर से 4 लोब्स बन जाएगा इसके सेंटर से। और इससे हमने क्या किया, यहाँ से सेंटर से एक लोब हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा लोब हमने ऐसे ड्रॉ किया, तीसरा लोब हमने ऐसे ड्रॉ किया, एंड 1 लोब अबव द प्लेन एंड 1 लोब बिलो द प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में हमारा जो एंगल है वो सारे एंगल होंगे 90 डिग्री के। यह एंगल जो हमारा प्लेन से बनेगा, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, यहाँ भी बन जाएगा 90 डिग्री। एग्जाम्पल इसके होगा SF6 और कॉम्प्लेक्स में CONH3 होल 6, टोटल 3+, हेक्सामीन कोबाल्ट 3, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब सिमिलरली हमारे पास आएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें क्या है कि जब सिमिलर टाइप के हम प्रोसेस को देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट स्लोली क्लियर होता है। अब इसमें आप टोटल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपके पास कि इसमें एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा और 3 d ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है इसमें s ऑर्बिटल हम लेते हैं। एक s ऑर्बिटल हमने बना लिया, उसके बाद हमारा px, उसके बाद हमारा बन गया py, इसके बाद हमारा बन गया pz, px, py और pz 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें हमने को 3 d ऑर्बिटल चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन होगा कि कौन सा d ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 d ऑर्बिटल जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में T2G कहते हैं, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, हमको इसमें चाहिए 3 d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz और dxz या dzx कह सकते हैं आप। इस तीनों को मिक्स करने के बाद हमारी जो ज्योमेट्री होगी, तो टोटल आफ्टर हमने इसमें 1s, 3p और 3d, टोटल 7 हमारे पास हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम आप बना लीजिए, कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक हमने नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट आपको बताया है, हर का हाइब्रिड बनेगा, बीच में प्लस भी लिख सकते हैं, काउंट करने के लिए नहीं भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट आपका डेवलप हो चुका है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो 1 बाय 1। सो 1 2 3 4 5 टोटल हमारा है 7 6 और एक हो गया हमारा 7। एक हो गया हमारा s ऑर्बिटल, आप इसको देखिए s ऑर्बिटल px, py, pz, 1s, 3p एंड 3d, तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इनके मिक्सिंग से हमारा बन जाएगा ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका कि आप पेंटागन बना लो। एक आप इजीली एक पेंटागन बना लीजिए, एक सिंपल सा पेंटागन आप ड्रॉ कर लो।
पेंटागन ड्रॉ करने के बाद बीच में एक पॉइंट से आप 5 लोब्स बना लीजिए, 2, 3, 4, 5 और 2 आप ऊपर और एक नीचे बना दीजिए। इसकी ज्योमेट्री आपको देखना है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में 2 एंगल जो हैं, यह एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा हो गया एक्सियल एंगल, और रिमेनिंग इक्वेटोरियल एंगल बोलिए जो, तो इसमें हो जाएंगे 90 डिग्री के 2 एंगल्स हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री के, और 72 डिग्री को हम लिख रहे हैं इक्वेटोरियल। समझने के लिए आप लिखिए, इसका एंगल होगा 5। सो 2 हमारे हो गए 90 डिग्री के और 5 हो गए हमारे 72 डिग्री के एंगल। अब यहाँ से एक मेजर क्वेश्चन हमने समझा कि sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने कैसे ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। इसके बेसिस से हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, उसके बाद हम एक एक करके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट आप समझिए, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने देखा sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर आपको बताना है। sp3, sp2 और sp, आप ऐसे समझिए। सबसे पहले हमने लिखा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर हम दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम s कैरेक्टर के बारे में जान लें, sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर sp3, तो टोटल ऑर्बिटल्स 4 हैं, तो s का परसेंटेज हो गया 25%। sp2 में s कैरेक्टर हमारा हो जाएगा 33% और sp में s कैरेक्टर हमारा हो जाएगा 50%। अब इससे 25% हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन और कार्बन का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ cc बॉन्ड, आप देखिए इसमें cc बॉन्ड लेंथ यह होगा आपका 154 पिकोमीटर। C डबल बॉन्ड C जो होगा, इसका लेंथ हमारा होगा 120 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज अ यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। और sp में ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच का जो लेंथ है, यह हो जाएगा 120 पिकोमीटर। sp2 में बेसिकली दिस लेंथ इज 134, यहाँ पर 134 पिकोमीटर। इसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि जब बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ता है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होगी, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल वे में आप देखिए, इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं कि परसेंटेज s कैरेक्टर, percentage s character is directly proportional to bond angle. परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के, और परसेंटेज s कैरेक्टर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, जिसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। एंड थर्ड कैरेक्टर है एस कैरेक्टर का इम्पैक्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के।
आपने देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर। जब हमारा एस कैरेक्टर बढ़ा तो यह एंगल और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया इसमें। अब यहाँ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको एग्ज़ाम्पल के बाद यह जानना है कि हम जो एंगल अटैचमेंट जो हम बना रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बेसिस पर केमिकल बॉन्डिंग में हमको एक्सप्लेन करना है sp, sp2 और sp3। एक एक एग्ज़ाम्पल इस स्कूल लेवल के अलग एग्ज़ाम्पल्स होंगे और कंपटीशन लेवल के अलग एग्ज़ाम्पल होंगे। किसी भी केटायंस और एनायंस को हम देख के बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ BeF2 shape of sp। shape of beryllium difluoride using sp hybridization। sp हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले आप देखोगे इसमें कि हमारे पास बेरिलियम में BeF2, बेरिलियम इज अ मेंबर ऑफ 14th ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p0। इन ग्राउंड स्टेट में वैलेंस सेल जो है इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं, p ऑर्बिटल इज एम्प्टी। तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी केवल और केवल 0 होगी, क्योंकि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। लेकिन इससे 2 फ्लोरीन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसमें F2 में 2 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं BeF2 में। और फ्लोरीन का बेरिलियम से बॉन्ड बनाना तभी पॉसिबल होगा जब बेरिलियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सो बेरिलियम जो है वो फ्लोरीन को एकोमोडेट करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में अपने एक इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से प्रमोट करता है p ऑर्बिटल में, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है 2s और 2p। एनर्जी लेवल s ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 2 है ऑर्बिट नंबर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट होगा s से p में, देन आपने क्या देखा कि बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। और फ्लोरीन आप देखिए, फ्लोरीन के पास कंडीशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। इसका 2pz ऑर्बिटल जो है उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो 2 फ्लोरीन इसके साथ, बेरिलियम के साथ, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। सो 2 फ्लोरीन इसके साथ मिक्स होंगे। किस ऑर्बिटल में मिक्स होंगे? तो बेरिलियम का एक s और एक p इलेक्ट्रॉन इस दोनों फ्लोरीन को एकोमोडेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी कि सबसे पहले एक ऑर्बिटल s और एक ऑर्बिटल p मिक्स हुआ। किसका? हमारा 2s और 2p मिक्स होगा। तो आप इसको ध्यान से ऐसे समझिए, हमारा एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल, 2s और 2p ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो गए। यह हो गया 2s और यह हो गया 2p। 1 2s and 1 2p orbitals are mixed. 1 minute. 1 2s and 1 2p orbital.
ये दोनों हमारे मिक्स हो गए। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका कंडीशन बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए इसमें इजीली ऐसे समझेंगे आप। सबसे पहले आप डॉटेड लाइन ले लीजिए और यहाँ से आपने एक लोब इधर बनाया और एक लोब इधर, और ये स्मॉल लोब नेगेटिव वाला बीच में आ गया। अभी हमारा बन गया sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास दो फ्लोरीन एटम है, दोनों इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे कंबाइंड होंगे? तो सेंट्रल एटम हमारा है बेरिलियम, तो सेंट्रल एटम बेरिलियम जो है वह sp2 हाइब्रिड बन के यहाँ पर रुका हुआ है। अब दो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेंगे यहाँ ऐसे, और हमको एक कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो हमारा ज्योमेट्री क्लियर हो गया कि BE एक F इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ जो ज्योमेट्री हो गई यह हो गई 180 डिग्री हमारा एंगल हो गया, और हमारा मॉलिक्यूल हो गया लीनियर। बॉन्ड एंगल चूँकि हमारा है 180 डिग्री, तो लीनियर मॉलिक्यूल हो गया और हमारा बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अब इसके बेसिस पर हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, किसी भी एलिमेंट्स का हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक टेक्निक आपको हम बताते हैं कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे पकड़ पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने आपको बोला कोई भी ज्योमेट्री आप ले लीजिए, किसी भी ज्योमेट्री से आप एक्सप्लेन कर सकते हो केवल ऑर्बिटल्स देख के। जैसे आपके पास है BeH2, इसको आप छोड़ दीजिए, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? दो। दो से क्या हो गया? sp। दो से क्या बन गया? sp, क्योंकि दो हाइड्रोजन कंबाइंस हो रहे हैं बेरिलियम से। अब दूसरा एग्जांपल देखिए BF3, एक बोरॉन से कितने फ्लोरीन कंबाइंड हो रहे हैं? तीन। तो सेंट्रल एटम से तीन कंबाइंड होंगे तो sp2। अगर CH4 है तो कार्बन से चार कंबाइंड हो रहे हैं तो sp3। अगर आपके पास PCl5 है तो फॉस्फोरस से पाँच कंबाइन हो रहे हैं तो sp3d। SF6 में आप देखो सल्फर से सिक्स कंबाइंड हो रहे हैं तो sp3d2। IF7 में आप देखिए sp3d3। सो किसी का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको हम एग्जांपल्स दे रहे हैं एनायंस का। सेंट्रल एटम से कितने कंबाइंड है उसको आप देखिए। जैसे आपके पास है NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फेट SO3 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, BH4 माइनस, NH4 प्लस, अमोनियम, PCl4 प्लस, PCl6 माइनस। आप किसी का भी अब देखिए, इसमें सेंट्रल एटम को आप इग्नोर कर दीजिए। हम आपको सेंट्रल एटम को रेड से मार्क कर रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिए। इसको इग्नोर करने के बाद आप देखिए कि रेड वाला जो हमने मार्क किया है वह कितने एटम से अटैच है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन 3 एटम से अटैच है। आप अपनी तीन उंगली निकाल के spp क्या हो गया? sp2। उसी तरह तीन का क्या होगा? sp2। जब चार होगा तो sp3, चार है तो sp3, चार है तो sp3, फिर चार है तो sp3। अगर यहाँ पर चार है तो sp3, अगर 6 है तो sp3d2। अब ऐसा एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास हमने बोला कि PCl5 के आयनिक कंपाउंड है और इसके दो मोल मिलके हमने ऐसे लिख दिया PCl4 प्लस प्लस PCl6
माइनस। अब आप खुद देखो, इसको रेड मार्क कर दो सेंट्रल एटम को, और अब देखो कि कितने एटम अटैच हैं रेड वाले फॉस्फोरस से, 5, तो sp3d। यहाँ 4 हैं तो sp3, यहाँ 6 हैं तो sp3d2। यानी कि PCl5 के पास टेट्राहेड्रल केटायन है। यह क्या है? टेट्राहेड्रल केटायन, और यह हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल एनायन। सो किसी भी एलिमेंट का आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हैं, उससे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। सो आप किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप देखोगे, अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3, अगर एक पाई बॉन्ड है तो आप इसको sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह sp है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमने बोला एक सब ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है C3O2। C3O2 का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सो आपने बोला ये तो बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री मालूम है कि ऑक्सीजन जो है यह 2 कार्बन से जुटा हुआ है। अब यहाँ जो कार्बन है, एक सिग्मा और एक पाई है, यह सिग्मा और पाई है, सिग्मा और पाई है, सिग्मा और पाई है। सो फर्स्ट कार्बन को हमने अंडरलाइन कर दिया ग्रीन से, सारे कार्बन को ग्रीन से अंडरलाइन किया हमने। अब कार्बन पर आप फोकस कीजिए, यह कार्बन एक सिग्मा और 2 पाई से जुटा है, तो क्या होगा? sp। यह भी हो गया sp और यह भी हो गया sp। तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसके बाद इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि कैलकुलेट करने आएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन अगर जानते हैं तो हम निकाल सकते हैं। हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा बॉन्ड एंगल क्या है, ज्योमेट्री क्या है। तो हम इसको आपको फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि अगर sp है तो 180 डिग्री, sp2 है तो 120 डिग्री, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट, sp3d है तो 2 तरह के एंगल होंगे, एक्सियल 90 डिग्री के 2 और इक्विटोरियल होंगे 120 डिग्री के। अगर हमारे पास sp3d है तो उसका हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में 90 डिग्री के एंगल होंगे सारे। sp3d3 में हमारे पास 2 90 डिग्री के एक्सियल होंगे और 5 इक्विटोरियल जो होंगे उसमें उनका एंगल होगा 72 डिग्री। सो IF7 में, IF7 जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास, IF7, इसमें आयोडीन जो है वह sp3d3 है और इसकी ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसके पास 5 लॉन्ग IF बॉन्ड हैं, 5 लॉन्ग IF बॉन्ड होंगे और 2 शॉर्ट IF बॉन्ड होगा। और इसमें यह हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7+ में भी होगा। सो कनेक्टिविटी जो है, हाउ टू कोरिलेट, इस पर आपको ध्यान देना होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फिर से आपको हम बताएंगे इसका मूल मंत्र क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, कि हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल उनका शेप होता है, सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन होता है इनका स्पेस में, और इस स्पेस ओरिएंटेशन से हम उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पर बॉन्ड एंगल और उसके ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि यह केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है हाइब्रिडाइजेशन। साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होगा अल्कीन में और अल्काइन में, सो अल्कीन में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, तो दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और इथीन में एक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। सो आप इसको एक बार फिर से देखिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो आपको